Good evening, everyone. Today we are going to start the next chapter in physical chemistry, and the chapter is electrochemistry. Electrochemistry is a very self-explanatory term. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम से ही आपके माइंड में बहुत सारी चीजें आ जाएंगी. सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म है ये, राइट? नाम से ही बहुत कुछ पता चल रहा है. क्या पता चल रहा है? क्या पता चल रहा है? Electricity related chemistry. Okay. So actually in the chapter we are going to study two important phenomena. One, the conversion of chemical energy released in spontaneous redox reactions into electrical energy. Spontaneous redox reactions में रिलीज होने वाले chemical energy का conversion into electrical energy. And the second important phenomenon we will be discussing is the utilization of electrical energy to carry out non-spontaneous chemical reactions. ठीक है? तो अगर आपसे कोई पूछे what is electrochemistry, आपका आंसर क्या होना चाहिए? It is a branch of chemistry which deals with the study of conversion of chemical energy released in spontaneous redox reactions into electrical energy and the utilization of electrical energy or the use of electricity to carry out non-spontaneous chemical reactions. ठीक है? इसमें जो पहला वाला पार्ट मैंने बोला ना, conversion of chemical energy released in spontaneous chemical reactions or spontaneous redox reactions into electrical energy. This is actually carried out in a special kind of the cells which are called electrochemical cells. आज हमारा main topic यही है. We are going to study about electrochemical cells. और जो मैंने दूसरी एस्पेक्ट बताई, दूसरा क्या बताया था मैंने? दूसरा अभी क्या बताया? Utilization of electrical energy for carrying out non-spontaneous chemical reaction. This you have already read. आपने पहले अपने छोटे lower grades में पढ़ा हुआ है. That is actually the part of electrolytic cell. आपने electrolytic cell के बारे में पढ़ा है. आपने electrolysis phenomenon भी पढ़ी है. Fine. हर चैप्टर की तरह यहाँ भी मैं कहूँगा एक बार अपने आप में सोच के देखिए that why the chapter is important, why to study this chapter. This chapter has the highest weightage in physical chemistry. Physical chemistry में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी में इस चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है. अराउंड 9 मार्क्स का चैप्टर है ये. अराउंड 9 मार्क्स. लास्ट ईयर 9 मार्क्स का था. 9 और 7 यही वेटेज है. ठीक है? 9 मार्क्स और 7 मार्क्स का चैप्टर है. सॉल्यूशन का 7 मार्क्स. तो एक तो ये है कि the chapter has a very good weightage in the board examination, and in order to score that we need to have a good grip on this chapter. दूसरी तरफ the electrochemical and the electrolytic phenomenon are so common in our life कि अगर मैं यहाँ बोलना शुरू करूँगा तो you will be just कि हाँ सर ये तो देखा है, ये तो हम यूज कर रहे हैं. Like right from your childhood you must have studied that messages in our body are transferred in the form of electric impulse, right? So ये nervous system जो electrical impulse carry करता है, electrical messages जो carry करता है, that electrical messages are carried on the principle of electrochemistry. मैसेजेस का ट्रांसफर नर्वस सिस्टम के थ्रू कैसे होता है? थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल, और दिस इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इसके अलावा आपके डेली लाइफ में
you are very much familiar with the use of battery in the cells, है ना? आप अपने मोबाइल फोन्स में यूज कर रहे हैं जो आपका सबसे प्रिय है ना? लिथियम आयन बैटरी यूज होता था, अब कौन सी बैटरी यूज हो रही है? सेम लिथियम आयन बैटरी। अच्छा, इसके अलावा आपके स्कूटर में, आई मीन स्कूटी में, आपके बाइक में, बस में, ट्रैक्टर में आप बैटरीज यूज करते हो। हमारे घर में भी हम बैटरी यूज करते हैं इन्वर्टर के साथ, राइट? कभी सोचा है कि व्हाट इज दिस बैटरी? इट इज नथिंग, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ओनली। जब हम आज ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स पढ़ेंगे तो ये खुद क्लियर हो जाएगा। एंड इन दिस चैप्टर टुवर्ड्स द एंड वी हैव अ स्पेशल सेक्शन ऑफ बैटरीज, जिसमें हम कमर्शियली यूज होने वाले बैटरीज को डिस्कस करने वाले हैं। गेटिंग माय पॉइंट? इसके अलावा देयर आर मेनी केमिकल्स, देयर आर I will say commercially important chemicals which are obtained by the process of electrochemistry. Electrochemistry is involved in the production of those chemicals. Like you must have read the preparation of caustic soda. Sodium hydroxide की preparation कैसे करते हैं? By passing electric current through the brine solution. Electrolysis ही होता है ना वहाँ पे। Electrolysis is a part of electrochemistry only. We are going to study the laws related to electrolysis which were given by Faraday. Faraday's law of electrolysis पढ़ने वाले इसी चैप्टर का पार्ट है। You must have read about extraction of metals, I will say rather extraction of highly reactive metals like sodium, aluminium. इन metals का extraction कैसे किया जाता है? By a process called electrolytic reduction. आपको पता है that many of the metals, in order to prevent them from corrosion, they are electroplated with some superior metals, right? जैसे हम क्रोम प्लेटिंग करते हैं, है ना? जैसे हम कई बार जो है आर्टिफिशियल ज्वेलरी के लिए गोल्ड प्लेटिंग यूज करते हैं, है ना? ये सब गोल्ड प्लेटिंग, क्रोम प्लेटिंग कैसे होता है? इट इज अ फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओनली। ठीक है, तो कुछ नया है आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? बचपन से आपके बॉडी के अंदर ही तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चल रही है, नहीं? बचपन से ही नर्वस सिस्टम तो आपके एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही फॉर्म हो जाता है और वहां से ही इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर बीइंग फ्लोइंग थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम, एंड दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आर जनरेटेड एज पर द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओनली। ठीक है, so in short, electrochemistry is a very important part of chemistry, and we have been encountering the application of electrochemistry in our day-to-day life, right? And if we understand the chapter properly, if we understand the chapter thoroughly, it will be more helpful to us to decide in choosing the different phenomena and explaining it to others as well, है या नहीं? चलिए, so now I will begin the chapter with the topic electrochemical cells. electrochemical cells से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, और ये electrochemical cells जो है ना, it is just an extension or say rather recapitulation of part which you must have read in grade 11 chemistry. 11th में एक चैप्टर था रेडॉक्स रिएक्शंस। उस रेडॉक्स रिएक्शन में ऑलरेडी आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रेडॉक्स रिएक्शन में रिलीज होने वाले केमिकल एनर्जी, जिसे हम गिब्स फ्री एनर्जी भी कहते हैं, उस गिब्स फ्री एनर्जी को इट कन्वर्ट्स इनटू इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज द यूज ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। देखिए, यहां पे मैंने एक बहुत ही सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है, एंड दिस सिंपल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज डेनियल सेल। कौन सा सेल है ये? दिस इज डेनियल सेल। डेनियल सेल,
इस डेनियल सेल की कंस्ट्रक्शन थोड़ा ध्यान से समझिएगा. You are able to see here, I have kept zinc electrode dipped in zinc sulfate solution. You have to take salt solution of zinc. तो हमने zinc sulfate solution choose किया. Zinc is dipped in zinc sulfate solution. And here in the another beaker, copper is dipped in copper sulfate solution. These two electrodes are connected with the help of metallic wire, and the two beakers are connected with the help of salt bridge. ये दोनों beaker कैसे connected हैं? The beaker are connected with the help of salt bridge. अब आप सोच रहे होंगे कि ये salt bridge है क्या? Salt bridge is actually a U-shaped glass tube. क्या है ये? U-shaped glass tube. U दिख रहा है ना उल्टा वाला? So this U-shaped glass tube is there, which is actually filled with the solutions of potassium, not solution actually, the paste of potassium chloride and ammonium nitrate in agar-agar gel. अगर जेल में पोटेशियम क्लोराइड या अमोनियम नाइट्रेट इसका पेस्ट बनाते हैं और इस पेस्ट को इस यू शेप्ड ग्लास ट्यूब में फिल कर दिया जाता है. दैट इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज. और सॉल्ट ब्रिज का पर्पस क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज डेवलप्स एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सॉल्यूशंस. ये दोनों सॉल्यूशन के बीच ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिल्ड करता है. जैसे हमारे नॉर्मल सर्किट्स में स्विच का जो काम है, स्विच क्या करता है? इट इज नोन फॉर क्लोजिंग एंड ओपनिंग द सर्किट. ये सर्किट को या तो क्लोज बनाता है या ओपन बनाता है. स्विच ऑन किया, क्लोज सर्किट, स्विच ऑफ किया, सर्किट इज ब्रोकन, इट इज एन ओपन सर्किट. देन वैसे ही सॉल्ट ब्रिज अगर जैसे ही हमने इंसर्ट किया यहाँ पे, द फंक्शन ऑफ द सॉल्ट ब्रिज इज टू एक्ट एज अ स्विच. इट विल डेवलप एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट and immediately the reaction will start in the two beaker. दोनों बीकर में रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा. यहां क्या होगा? यहां पे इस वाले पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड पे जिंक मेटल will oxidize and will keep on dissolving in the solution. यहां पे जिंक जो है ना ये डिसॉल्व होता जाएगा सॉल्यूशन में. कैसे डिसॉल्व होगा? तो इट विल बी लूजिंग इलेक्ट्रॉन. दैट मींस ऑक्सीडेशन विल बी टेकिंग प्लेस. ये क्या हो रहा है यहाँ पे? ऑक्सीडेशन. जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड, जिंक आयन इज फॉर्म्ड and that zinc ion becomes part of the solution. These two electrons which are lost here, these two electrons get accumulated first over this electrode and make the electrode negatively charged. Electrode को कैसा बनाता है? Negatively charged. Here this negatively charged electrode is called anode. इस negatively charged electrode को यहाँ क्या कहेंगे? Anode. Fine. On the other hand, the copper ion in this beaker gets accumulated first near this electrode, and then the two electrons which were lost over here, that two electrons flows through this metallic wire and cause the reduction of cupric ion here into copper ion. यहाँ पे जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ ना, ये मेटालिक वायर से इधर फ्लो होके आया और जो क्यूप्रिक आयन यहाँ अक्यूमुलेटेड है उस क्यूप्रिक आयन को इसने रिड्यूस कर दिया इनटू कॉपर. सो हियर जिंक इज डिसॉल्विंग and the zinc ion getting into the solution. Here copper ion from the solution is getting deposited on the copper in form of metal. है ना? अच्छा, इससे पहले जब यहाँ पे कॉपर आयन का accumulation हुआ था, then the charge which was developed over this electrode was positive, and here this positive electrode is cathode, right? तो ये पूरा आपको phenomenon समझ में आया क्या हो रहा है? यहाँ पे reduction process हो रहा है. This is reduction process. तो इस negative charge electrode पे oxidation हो रहा है
इस पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है। और इस पूरे फिनोमेनन में आप देखिए द इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग थ्रू दिस वायर, द इलेक्ट्रॉन इज flowing or the charges are flowing through the wire in a uniform direction. And you know very well that whenever charge is flowing through the wire, it is said to have a current. So here electric current is also flowing through this wire, right? But what will be the direction of electric current? Yes, the conventional direction of the current is just opposite to the flow of electrons. इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फ्लो कैसे हो रही है? इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो हो रहा है? प्रथम जिंक टू कॉपर इलेक्ट्रोड। बट व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट हियर? कॉपर टू जिंक। द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज कॉपर टू जिंक, राइट? यही है आपका डेनियल सेल। दिस इज व्हाट वी कॉल डेनियल सेल। इसमें एक चीज याद रखना है कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ द जिंक सल्फेट एंड एक्वस कॉपर सल्फेट इज 1 मोलर ओवर हियर, अगर ये दोनों सॉल्यूशन 1 मोलर है और ये पूरा सेटअप जो है रूम टेम्परेचर पे है, टेम्परेचर इज 298 केल्विन, देन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between these two electrode is obtained as 1.1 volt, है ना? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आता है यहाँ पे? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल which develops in Daniell cell is 1.1 volt. लेकिन किस कंडीशन में? What is the condition provided for that? The concentration of each of the electrolyte, each of this solution must be unity, means 1 molar. दोनों का concentration 1 molar होना चाहिए और the temperature should be 298 Kelvin. That is, it should be at room temperature. Then we find experimentally that the electrical potential here, इसी को आगे हम cell potential बोलने वाले हैं. The cell potential or electrical potential of Daniell cell is 1.1 volt. ठीक है? Now consider another situation. Consider another situation where again we have taken the Daniell cell only. ये भी क्या है? Daniell cell ही. आप कंपेयर कर लो. Zinc electrode dipped in zinc sulfate solution, copper electrode dipped in copper sulfate solution, है ना? And salt bridge is connecting the two electrode. अगर नॉर्मल कंडीशन हुआ तो इलेक्ट्रॉन विल बी फ्लोइंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड द फ्लो ऑफ करंट और द डायरेक्शन ऑफ करंट इज कॉपर टू जिंक. बट व्हाट एडिशनली आई हैव शोन दैट दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इज नाउ कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल सोर्स. ये एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्टेड है. इट इज कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल वोल्टेज, है ना? किससे कनेक्टेड है? एक्सटर्नल वोल्टेज से. और यहां पे इस एक्सटर्नल वोल्टेज के अप्लाई होने पे वी हैव 3 डिफरेंट कंडीशंस अराइजिंग. वो तीनों कंडीशन में एक एक करके बता रहा हूं आपको. पहला केस बता रहा हूं. केस 1. यहां पे इसको मैं मार्क कर देता हूं ई एक्सटर्नल. आई एम मार्किंग इट एज ई एक्सटर्नल. चलेगा? ठीक है? मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है. और ई एक्सटर्नल का मतलब हुआ द एक्सटर्नल पोटेंशियल डिफरेंस और द एक्सटर्नल वोल्टेज. तो केस 1 है हमारा व्हेन ई एक्सटर्नल इज लेस देन 1.1 वोल्ट. अगर एक्सटर्नल वोल्टेज हमने, देखो रियोस्टेट भी लगा रखा है, आपको पता है रियोस्टेट के हेल्प से वी कैन वेरी द पोटेंशियल, राइट? हाँ, रेजिस्टेंस चेंज करेंगे, रेजिस्टेंस चेंज करके हम करंट भी चेंज करेंगे, है ना? है ना? वोल्टेज सेम होगा. अगर वेरिएबल रियोस्टेट यूज किया, वेरिएबल रेजिस्टेंस यूज किया तो
रियोस्टेट ही होता है। अच्छा ठीक है, what you have to understand here that slowly and gradually we have to keep on increasing the external voltage here. हम जो भी वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे, प्रथम जो भी वोल्टेज सोर्स यूज करेंगे, क्या करेंगे, ग्रेजुअली हम उसकी वोल्टेज इंक्रीज करते रहेंगे, इंक्रीज करते करते तक till the time external voltage is less than 1.1 volt. Less than 1.1 volt क्या हुआ, actually cell potential of the Daniell cell. Then till the time E external is less than 1.1 volt क्या होगा, zinc will oxidize and Zn2 ions will dissolve in solution. Also, electrons will flow from zinc to copper and the current will flow from copper to zinc. श्योर ये समझ रहे हो, जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज सेल पोटेंशियल से लेस होगा, जब तक एक्सटर्नल वोल्टेज सेल पोटेंशियल से लो होगा, लेस होगा, तब तक ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का बिहेवियर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जैसा ही रहेगा. दैट मीन्स द जिंक विल बी ऑक्सीडाइजिंग ओवर हियर एंड द जिंक आयन फॉर्म विल डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन. या डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि जिंक विल डिसॉल्व एट एनोड एंड द कॉपर विल बी डिपोजिटेड एट कैथोड. जिंक जो है वो एनोड पे डिसॉल्व होता चला जाएगा और कॉपर कैथोड पे डिपोजिट होता जाएगा. ठीक है, डिसोल्यूशन ऑफ जिंक एट एनोड एंड डिपोजिशन ऑफ कॉपर एट कैथोड, ऐसे भी लिख सकते हो. लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, लैंग्वेज का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए. And the electron direction will be, the flow of electron will be from zinc towards copper and the current will keep on flowing from copper to zinc. ठीक है, दूसरी कंडीशन ले रहे हैं. दूसरा कंडीशन में सनी क्या करना है, अब मैंने कहा ना कि धीरे धीरे हम पोटेंशियल जो है, एक्सटर्नल वोल्टेज जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे. तो अब जो है हमने एक्सटर्नल वोल्टेज कर दिया है 1.1 volt. Now the external voltage is 1.1 volt. So जैसे ही external voltage 1.1 volt होगा, the reaction will stop. जैसे ही external voltage 1.1 volt होगा, no reaction will be taking place in either of the beakers और इधर ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. दोनों ही इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे. रिएक्शन स्टॉप्स एंड द करंट फ्लो आल्सो स्टॉप्स. ठीक है, सो रिएक्शन एट बोथ द इलेक्ट्रोड्स स्टॉप्स current flow also stops. I becomes 0. I क्या हो जाएगा, 0. राइट. और अब तीसरा केस देखते हैं. नाउ द थर्ड केस, यहां लिख रहा हूं मैं. नाउ द थर्ड केस. थर्ड केस इज external voltage is greater than 1.1 volt. External voltage is greater than 1.1
1 वोल्ट, एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट से ग्रेटर हुआ, अगर एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ग्रेटर हुआ, then everything will get just reversed. That means zinc ion will be deposited over this electrode and the copper will be dissolving here at this electrode. Zinc gets deposited and copper will keep on dissolving. Also, the flow of electrons now will be from copper towards zinc. Flow of electrons कहाँ से कहाँ होगा? From copper to zinc, and the direction of current will be zinc to copper, है ना? That means now the behavior of the cell will change from electrochemical cell to the electrolytic cell. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से ये सेल कैसा बन जाएगा? इलेक्ट्रोलिटिक सेल. That means now the electrical energy will be consumed for carrying out non-spontaneous reactions. ठीक है? तो यहां पे क्या होगा? Zinc will be Zn2 plus will be reduced to zinc and copper will be oxidized to Cu2 plus. Electrons flow from copper to zinc and current flows from zinc to copper. सारा कुछ जस्ट रिवर्स हो गया and the behavior of the cell is now electrolytic cell. ठीक है? ये आपको लग रहा होगा कि ये तो इंट्रोडक्शन है, चलता है, इससे क्या होगा? पिछले 2 साल से लगातार इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है. इसकी जब मैं कुछ वर्कशीट्स आपको दूंगा या जो आपके टेस्ट में जब क्वेश्चंस दूंगा तो यू विल गेट टू नो, बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस दूंगा इसमें से, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, है ना? जहां पे एक्चुअली मैं क्या करूंगा ना, दो गैल्वेनिक सेल दे दूंगा. एक गैल्वेनिक सेल को कहूंगा ए, दूसरे गैल्वेनिक सेल को कहूंगा बी, और उसी में आपको कुछ वैल्यूज दिया रहेगा सेल पोटेंशियल्स का, दोनों का, और उसके रिलेशन में ये इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन पूछूंगा. और वो क्वेश्चन भी सोचो 4 मार्क का क्वेश्चन होगा. ठीक है? सो द कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है? यहां पे डेनियल सेल में मैंने दोनों बीकर में हो रहे रिएक्शंस को लिखा. इसको कहते हैं हाफ रिएक्शंस. दिस इज ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन एंड दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन. लेकिन कंप्लीट सेल रिएक्शन क्या होगा वो मैं यहां पे लिखता हूं. सेल रिएक्शन is Zn plus Cu2 plus giving Zn2 plus C. है ना? सिंपल, इजी. आ रहा है समझ में? क्लियर? इसी डायग्राम को रेफर करते हुए एक दो छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं, वो हम पढ़ लेते हैं. उन टर्मिनोलॉजीज का कंप्लीट डेफिनेशन यू विल नोट इट डाउन फ्रॉम एनसीईआरटी. आई एम नॉट गोइंग टू राइट बिकॉज इट्स कंप्लीट थ्योरेटिकल, पूरा लंबा लंबा लिखना पड़ेगा. बट मोर इम्पॉर्टेंट इज यू अंडरस्टैंड इट एंड देन एज अ document, as a note, you can note it down from NCERT or from any notes, from any reference material.
देखिए इसमें ये पार्ट देखिए, वी हैव अ बीकर where we have taken solution and an electrode is dipped in it. What care is taken here that the solution here is the metal salt solution of the same metal which is dipped as electrode in it. Okay. So this particular part which is having an electrolyte and a metal rod dipped in it is known as half cell. इसको हम क्या कहते हैं? हाफ सेल. और इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेडॉक्स कपल. क्या कहा जाता है इसको? हाफ सेल और रेडॉक्स कपल. जैसे सपोज कभी आपको पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय अ हाफ सेल, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? अ मेटल इलेक्ट्रोड डीप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट ऑफ the salt solution of the same metal is called half cell or a redox couple. ठीक है? Same way, this is also another half cell. Here, the oxidation reaction is taking place in this half cell, so this will be called oxidation half cell. इसको हम क्या कहेंगे? Oxidation half cell. और reduction कहाँ हो रहा है? Reduction is taking place in this. So this will be called reduction half cell. When oxidation half cell and reduction half cell are connected with the help of salt bridge, it forms a complete cell. क्या बनाता है ये? Complete cell. याद रहेगा? हाफ सेल समझ में आया? हाफ सेल समझ में आया? मेटल इलेक्ट्रोड डीप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होना चाहिए? सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ सेम मेटल. ऑक्सीडेशन जिस इलेक्ट्रोड पे हो रहा हो वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा हो या जिस हाफ सेल में रिडक्शन हो रहा हो दैट इज रिडक्शन हाफ सेल. When oxidation and reduction half cells are joined with the help of salt bridge, it constitutes the complete galvanic cell. क्या कहेंगे? galvanic cell और electrochemical cell. अब galvanic cell और electrochemical cell में ये एक just type है. Daniell cell is just an example. It's just a type. The fact is, we can construct innumerable number of such a redox couple or half cell. ऐसा half cell और ऐसा redox couple जो है, हम varieties of redox couple जो है construct कर सकते हैं. जैसे suppose, if a silver electrode is dipped in solution of silver nitrate, अगर silver electrode को silver nitrate solution में dip कर दिया, बना ना, एक half cell ready हो गया ना. Suppose if we dip iron electrode in ferrous sulfate solution, बना एक हाफ सेल. इसी तरह अलग अलग पॉसिबिलिटीज यूज करते हुए यू कैन कंस्ट्रक्ट इनन्यूमरेबल नंबर ऑफ रेडॉक्स कपल्स और हाफ सेल्स. ऐसे बहुत सारे रेडॉक्स कपल और हाफ सेल्स कंस्ट्रक्ट हो सकते हैं. सेल रिएक्शन मैंने दोनों को ऐड कर दिया है, तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट साइड में कैंसल हो जाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग दिस. ठीक है, चलिए अब आगे ये समझिए कि इस पर्टिकुलर हाफ सेल में एट द इंटरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, इंटरफेस समझते हो ना, द सरफेस विच इज सेपरेटिंग इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एट दैट इंटरफेस the two possibilities are there. One possibility is the metal can get oxidized and then it can become part of the solution. अगर मेटल ऑक्सीडाइज होगा तो मेटल आयन बनेगा और मेटल आयन तो सोल्यूशन का पार्ट हो जाएगा. तो मेटल आयन और मेटल हियर कैन ऑक्सीडाइज एंड कैन बिकम पार्ट ऑफ सोल्यूशन और से मेटल कैन डिसॉल्व इन द सोल्यूशन. दूसरी पॉसिबिलिटी है that metal ions in the solution can get reduced and it can get deposited over the metal. So the metal ion from the solution can deposit over the metal electrode. Metal ion solution से metal electrode पर deposit हो सकता है. लेकिन इनमें से कौन सी प्रोसेस होगी वो डिपेंड करता है
वो डिपेंड करता है over the potential which is developed between the electrode and electrolyte here. इस इंटरफेस पे इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच एक्चुअली एक पोटेंशियल डेवलप होती है, उस पोटेंशियल को कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. व्हाट वी कॉल इट? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आप बोलोगे द पोटेंशियल व्हिच डेवलप्स at the interface of electrode and electrolyte, that is known as electrode potential. And whenever we have concentrations of the electrolyte as unity, अगर electrolyte का concentration unity हो मतलब 1 molar हो और room temperature 298 Kelvin पे measurements लिए जाए, then at that time the electrode potential is known as standard electrode potential. Difference समझ में आ रहा है दोनों? Electrode potential can be at any temperature and can have any concentration of electrolyte, whereas a standard electrode potential, this term mean that the electrolyte is having unit concentration. Electrolyte की concentration क्या है? 1 molar और टेम्परेचर क्या है? 298 केल्विन. मेजरमेंट इज टेकन एट 298 केल्विन. आ रहा है समझ में? ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दोनों क्लियर है? दोनों समझ में आ रहा है? पक्का? नाउ इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आपको एक स्टेप और फर्दर भी समझने की जरूरत है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक्चुअली दो तरह के होते हैं. One is reduction potential and the other is oxidation potential. दो तरह के potential हैं. Electrode potentials are of two types, reduction potential and oxidation potential. But conventionally the reduction potential has been given the name of electrode potential. तो थ्रू आउट दिस चैप्टर जब भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलूं ना, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से आप क्या समझोगे? दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोड. ठीक है? जब भी मैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म यूज करूं तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब आप क्या समझोगे कि मैं उस इलेक्ट्रोड के रिडक्शन पोटेंशियल की बात कर रहा हूं. और कहीं इन केस कहीं ऐसा हो सकता है, किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में हो सकता है कि रिडक्शन पोटेंशियल की जगह आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ हो, या हो सकता है कि रिडक्शन पोटेंशियल से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो. तो उस केस के लिए भी बता दूं दैट द रिडक्शन पोटेंशियल एंड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड, दे डिफर ओनली इन देयर साइन. सिर्फ अपने साइन में डिफर करते हैं, दे हैव द सेम मैग्नीट्यूड. ठीक है? बता रहा हूं. अब यहां पे देखिए, इफ जिंक इलेक्ट्रोड एंड द जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट, इसके इंटरफेस पे इफ इट डेवलप्स अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव डेवलप होता है, देन इट हैज अ पॉसिबिलिटी ऑफ एक्टिंग एज एनोड. ये किस तरह से एक्ट करेगा? एनोड की तरह. और आपको बता दूं कि जिंक की स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E naught of zinc electrode is minus 0.76 volt. देखो कैसे डिनोट करते हैं. जब मैं स्टैंडर्ड बोलूंगा तो यहां पे मैं ये ऐसी साइन दूंगा, इसको E naught पढ़ा जाता है. और यहां पे देखो मैंने Zn2 प्लस एंड देन सेपरेटेड बाय अ वर्टिकल लाइन जिंक लिखा है, राइट? इसका मतलब क्या है? Zn2 प्लस और जिंक इस तरह से लिखा है, इसका मतलब आई एम राइटिंग रिडक्शन पोटेंशियल. अगर मैं इसका उल्टा लिखूं ना, प्रथम अगर मैं जिंक सेपरेटेड बाय वर्टिकल लाइन एंड देन Zn2 प्लस लिखूं, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा. दैट विल बी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल. याद रखिएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में खास करके आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत सिंपल न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन उसमें क्या करेंगे? डेटा में रिडक्शन पोटेंशियल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू दे देंगे. ऐसे ही सिंबॉलिकली, ऐसे ही साइन लैंग्वेजेस में डिनोट करेंगे ऐसे.
और अगर वहां पे आप मिस कर गया, अगर आपने वहां ध्यान से देखा नहीं, ध्यान से पढ़ा नहीं, आपका पूरा सॉल्यूशन वहां गलत आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल को डिनोट करते हैं ऐसे। अगर Zn इधर लिखा, Zn2 प्लस इधर लिखा, तो वही क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब भी ये नेगेटिव वैल्यू आएगी, देन इट्स बिहेवियर इज एनोड, इट विल लाइकली बी बिहेविंग एज एनोड, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। और इसका जस्ट अपोजिट इसमें कॉपर और कॉपर सल्फेट इंटरफेस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होती है वो पॉजिटिव होती है। ई नॉट ऑफ दिस, ई नॉट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इज पॉजिटिव 0.34 वोल्ट। ये हाइड्रोजन आयन से रिड्यूस नहीं होगा। हाइड्रोजन आयन will not be capable of reducing cupric ion। यही रीजन है कि कभी भी कॉपर किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन पे हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव है, 0.34 वोल्ट है। इट विल बी एक्टिंग ऑलवेज एज रिडक्शन हाफ सेल, वो रिडक्शन हाफ सेल की तरह एक्ट करेगा, मतलब क्यूप्रिक आयन खुद अपने आप को रिड्यूस करेगा। हाँ, लेकिन कॉपर जो है दैट एक्चुअली गेट्स ऑक्सीडाइज्ड बाय यूज ऑफ नाइट्रिक एसिड। आप देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कॉपर डिसॉल्व नहीं होता, सल्फ्यूरिक एसिड में भी कॉपर कुछ हद तक डिसॉल्व नहीं होता, बट कॉपर इज कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग इन नाइट्रिक एसिड। लेकिन नाइट्रिक एसिड में वहां डिसॉल्व होने के बावजूद हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन नहीं करता वो। There the copper is actually getting oxidized by nitrate ion। वहां पे कॉपर का ऑक्सीडेशन किससे होता है, नाइट्रेट आयन से। नाइट्रेट आयन इज ऑक्सीडाइजिंग कॉपर देयर, फाइन। जबकि हाइड्रोजन विल नेवर बी कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग कॉपर। हाइड्रोजन आयन कभी भी कॉपर को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है 0 वोल्ट एंड कॉपर का आप देखिए पॉजिटिव होता है 0.34 वोल्ट। जिसकी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव में होगी, ओनली दे विल बी कैपेबल ऑफ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयन। जैसे आप देखिए जिंक विल बी ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयन। व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक इज एडेड टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड? जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, राइट। क्या हो रहा है वहां पे, एसिड में प्रेजेंट हाइड्रोजन आयन जिंक को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए वो Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, और हाइड्रोजन आयन बदले में खुद को रिड्यूस कर ले रहा है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस, राइट। आ रहा है समझ में? चलिए, तो आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ में आ गया, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड ये भी समझ में आ गया कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ तो लाइकली बिहेवियर इज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ तो लाइकली बिहेवियर इज रिडक्शन हाफ सेल। सपोज सनी, सपोज ऑक्सीडेशन हाफ सेल, अगर पॉजिटिव हुआ तो रिडक्शन हाफ सेल। अब ध्यान से सुनना, सपोज आपको दो रेडॉक्स कपल दिए हुए और दोनों की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू जो दी हुई है दोनों की नेगेटिव है, बोथ हैव नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। वन इज हैविंग अ हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू और दूसरे का लेस नेगेटिव है। Then tell me which one will behave as oxidation half cell and which one will behave as reduction half cell? The one which has more negative E naught value, जिसका E naught value ज्यादा नेगेटिव होगा वो ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह बिहेव करेगा, मतलब एनोड बनेगा, और जिसकी E naught वैल्यू लेस नेगेटिव होगी that will become कैथोड और will behave as reduction half cell। याद रखना,
कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल फॉर्म होने के लिए द कंडीशन रिक्वायर्ड इज द डिफरेंस ऑफ दिस टू। मैं आगे सेल पोटेंशियल की बात करूंगा, तो देयर शुड ऑलवेज बी सम सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल इन्हीं का डिफरेंस से निकलता है, मैं बताता हूं कैसे निकलता है। तो कंडीशन यही है कि देयर शुड ऑलवेज बी सम पॉजिटिव ई सेल वैल्यू। जहां ई सेल वैल्यू पॉजिटिव आएगा, देयर वी हैव द पॉसिबिलिटी ऑफ कनेक्टिंग द redox couples or half cells and constructing a complete galvanic cell. Getting it? Clear है? चलिए, let's take a small pause. You can note it down and then we will continue further. चलिए. Now after understanding electrode potential and standard electrode potential, you need to know that the difference of electrode potential of cathode and anode, that is known as cell potential. कैथोड और एनोड के पोटेंशियल का डिफरेंस, इसको हम कहते हैं सेल पोटेंशियल। इट इज ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। या यू भी कह सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड minus reduction potential of anode gives you the cell potential. Also, standard cell potential, बोलो ये क्या होगा? थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस यूज कीजिए। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होना चाहिए? When these two are standard, that means standard reduction potential of cathode minus स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ठीक है, स्टैंडर्ड का मतलब हुआ व्हेन कंसंट्रेशंस आर 1 मोलर, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशंस जब 1 मोलर हो और रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। ठीक है, चलिए अब ये याद रखिएगा कि व्हेन द सेल इज नॉट इन यूज, जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यूज नहीं हो रहा हो, दैट मीन्स यू आर नॉट विड्रॉइंग इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम इट, एट दैट टाइम दिस सेल पोटेंशियल इज ऑल्सो कॉल्ड ईएमएफ। ईएमएफ का क्या मतलब है? सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ स्टैंड्स फॉर सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, और किस कंडीशन में ईएमएफ टर्म यूज करेंगे? जब सेल यूज ना हो रहा हो, उस वक्त उसकी जो भी सेल पोटेंशियल वैल्यू होगी उसको हम ईएमएफ के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलेगा? क्लियर है? अब ये याद रखिएगा कि बाय कन्वेंशन in the presentation of a galvanic cell and in the denotion of a galvanic cell, the anode is written on the left and the cathode is written towards the right. And how do we represent? तो अगर हम galvanic cell को example में ले, तो galvanic cell में देखो पहले क्या हुआ, I mean Daniell cell में क्या हुआ, zinc oxidized to zinc ion, right? आप चाहो तो यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन डाल सकते हो 1 मोलर। इसके बाद क्या आता है? सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज के लिए क्या? डबल वर्टिकल लाइन। हाफ सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया? इलेक्ट्रोड सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रोलाइट बाय अ वर्टिकल लाइन। अब इस तरफ आएगा कैथोड वाला पार्ट। तो कैथोड में फर्स्ट वी विल बी राइटिंग द आयन, क्यूप्रिक आयन, कंसंट्रेशन इज 1 मोलर एंड देन फाइनली कॉपर। हाँ, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल और ये रिडक्शन हाफ सेल। तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है, आपको कोई सेल दे दिया जाएगा या उस सेल का रिएक्शन दे दिया जाएगा और उसके बेसिस पे बोला जाएगा हाउ यू कैन डिनोट दिस सेल, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट द सेल। तो द सेल रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस, डबल वर्टिकल लाइन इज फॉर सॉल्ट ब्रिज एंड दीज आर द हाफ सेल्स। ठीक है, ऐसा ही एक एग्जांपल आपको मैं यहाँ पे दे रहा हूं।
चलिए बताइए मुझे, what will be the presentation of the half cell? Cu स्लैश नहीं बोलेंगे इसको, वर्टिकल लाइन, एंड देन Ag प्लस, राइट, इजी है ना, सिंपल, लिखना आएगा ये। चलिए तो इस पे हम ज्यादा समय नहीं गवाते। अच्छा, क्योंकि हम एनोड को हमेशा लेफ्ट और कैथोड को हमेशा राइट में लिख रहे हैं, तो क्या इस ई सेल को शॉर्ट में ई आर माइनस ई एल लिख सकता हूं? रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल एट राइट, राइट पे कौन सा हाफ सेल है? कैथोड, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल विच इज एट लेफ्ट, लेफ्ट पे कौन सा है? एनोड। लिख सकते हैं ना ऐसे? तो ई सेल कैन ऑल्सो बी रिटन एज ई आर माइनस ई एल। हमने अभी अभी पढ़ा कि बाई कन्वेंशन, बाई कन्वेंशन का मतलब हुआ फिक्स्ड है, ट्रेडिशनली मतलब लंबे समय से हम ऐसा ही करते आ रहे हैं। हम एनोड को हमेशा लेफ्ट की तरफ रिप्रेजेंट करते हैं और कैथोड को हमेशा राइट की तरफ। ये रिप्रेजेंटेशन है गैल्वेनिक सेल का, जिसमें एनोड को लेफ्ट की तरफ लिखा है, कैथोड को राइट की तरफ। एनोड को लेफ्ट की तरफ लिखा है, कैथोड को राइट की तरफ। तो जब हम ऐसा कन्वेंशनली कर रहे हैं, तो ये ई सेल का फॉर्मूला जो मैंने लिखा था, ई कैथोड माइनस ई एनोड, इसको मैंने ई आर माइनस ई एल भी तो लिख सकता हूँ ना शॉर्ट में। ई आर का मतलब हुआ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल विच इज एट राइट, राइट पे क्या है? कैथोड। और ई एल का मतलब हुआ रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ द हाफ सेल विच इज एट लेफ्ट, लेफ्ट पे क्या है? एनोड। कितना इजी है ना, सिंपल। चलिए अब ये वाला पार्ट जो है ना मैं इरेज करूंगा। आई एम गोइंग टू इरेज दिस पार्ट, यू जस्ट टेक अ स्नैप ऑफ दिस। व्हाइट वाला जो बटन होगा उसको एक बार प्रेस कर देना, फाइन, एंड पास दैट डस्टर, ओनली व्हाइट वन, रेड वाला मत करना, पास दिस डस्टर, ठीक है। नाउ आई एम इरेजिंग दिस cause I need space. क्लियर है ना? अभी तक का पार्ट बहुत सिंपल है, इजी है, आगे का पार्ट और ज्यादा इजी होगा। अब हम आते हैं शी पे। शी जानते हो? हाँ, नहीं पता? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। Actually, what we are going to discuss, we are going to discuss the measurement of electrode potentials. हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इन द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वी यूज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसीलिए मैंने यहाँ पे शी लिख दिया है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। उसी का यहाँ पे मैंने एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन शो किया है। In the measurement of electrode potential, the first thing you need to know is there is no device, there is no equipment designed till now which can measure electrode potential of an individual half cell directly. ऐसा कोई भी डिवाइस अभी तक बना ही नहीं जो किसी हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डायरेक्टली मेजर कर ले। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? प्रथम, ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जो आपने यहाँ पे ऐसे लगाया और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर हो गई। देयर इज नो सच डिवाइस डेवलप्ड टिल डेट। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी हाफ सेल is measured by connecting it with
some reference electrode. कैसे मेजर करते हैं हम? रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ उसे कनेक्ट किया जाता है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ जब हम उसे कनेक्ट करते हैं, उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड में आपको उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू पता होनी चाहिए। हाँ, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता होनी चाहिए। उसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यहां मैंने शो किया है एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। So for the measurement of electrode potential, what do? We actually connect the half cell or that particular redox couple with the standard hydrogen electrode. हम उस हाफ सेल को किसके साथ कनेक्ट करते हैं? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं। हाँ, उस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करते हैं, और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें मालूम है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मालूम है, तो हमें जो भी सेल पोटेंशियल मिलेगा उससे वी कैन इजीली नो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट अनदर हाफ सेल। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में 2 मिनट समझ लीजिए। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज नथिंग, इट इज जस्ट अ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड कोटेड विथ प्लैटिनम ब्लैक which is dipped in an acid solution with concentration of 1 molar of hydrogen ion. Hydrogen ion का concentration क्या है यहाँ? 1 molar. And you can see that the hydrogen gas from here is bubbled in the solution at a pressure of 1 bar. तो यहाँ concentration 1 molar है, और यहाँ पे pressure भी आप देख रहे हो 1 bar है. The pressure is unity and the concentration of hydrogen ion is also unity. You can see the electrodic reaction here, the reaction which takes place, hydrogen ion is reduced to hydrogen gas. And at 298 Kelvin, not only 298 Kelvin, actually at all the temperature, it has been found that the electrode potential of standard hydrogen electrode is 0.0 volt. How do we represent this electrode, hydrogen electrode? We represent it like this: platinum, then separated by hydrogen, 1 molar aqueous solution, and then hydrogen gas, 1 bar. ठीक है, ये है, ये क्या है? This is she. This is representation of she. अब सपोज हमें ना यहाँ पे मान लीजिए कि ये जो जिंक सल्फेट है, इस जिंक सल्फेट की जिंक वाले हाफ सेल की हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे? वी विल कनेक्ट दिस विथ शी। तो जब हम शी के साथ इसे कनेक्ट करेंगे तो जो कंप्लीट हाफ सेल बनेगा, वो कंप्लीट हाफ सेल कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा: Pt H प्लस 1 मोलर H2 गैस, देन यही होगा ना? पक्का? ध्यान से देखिए, यहाँ पे कुछ तो है। पक्का? पक्का ना? चलिए, इसको मैं आगे भी लिख सकता था, ठीक है। सो अरे कुछ नहीं, ये सॉल्ट ब्रिज को उसके साथ डाल देना है। शी यहाँ रखेंगे इसकी जगह पे, और सॉल्ट ब्रिज उसमें डाल देंगे। हाँ ठीक, हाँ हाँ, एक में ही, एट अ टाइम एक में ही लगेगा। ये नहीं होगा, उसकी जगह शी आ जाएगा,
ठीक है, तो हाँ, हाइड्रोजन आयन is reduced to hydrogen gas and zinc is oxidized to zinc ion. ठीक है, अब इसकी जो सेल पोटेंशियल वैल्यू है ना, दिस सेल पोटेंशियल वैल्यू फॉर दिस इज -0.76 वोल्ट या 0.76 वोल्ट। क्या है ये? 0.76 वोल्ट। यू नो दैट ई सेल, अच्छा जो भी मिलेगा, क्योंकि ये दोनों स्टैंडर्ड कंडीशन में, तो मैं स्टैंडर्ड लिख सकता हूं यहाँ। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ई सेल आपको पता है, स्टैंडर्ड ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ, राइट, substitute the values. This is 0.76, this is 0.0, and this is E naught of Zn2 plus Z, right? तो क्या होगा? E naught of Zn2 plus Zn will be minus 0.76 वोल्ट, है ना? सिंपल। पता चला कैसे फाइंड किया? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का यूज पता चला। हमने क्या किया, जिंक वाले इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया। ठीक है, कैसे कनेक्ट किया? तो जैसे यहाँ कॉपर इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया है, वैसे ही कॉपर की जगह स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आ जाएगा। ठीक है, वोल्टमीटर के हेल्प से हम सेल पोटेंशियल निकाल लेंगे। स्टैंडर्ड कंडीशन में जो सेल पोटेंशियल आएगा वो स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल होगा। उसके बाद स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल का फॉर्मूला यूज किया, ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। कैथोड क्या है? ये। एनोड क्या है? ये। हाँ हाँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यहाँ लिखा ना मैंने कि 0 है ना? तो 0.0, अब साइड चेंज कीजिए, 0.76 वोल्ट आ गया। दूसरा देखिए, देखिए कॉपर के साथ यही है, ध्यान से देखो, देयर इज अ स्मॉल एरर इन इट, फाइंड आउट। देखिए फाइंड कीजिए ना, ओपन बुक असेसमेंट है, फाइंड कीजिए क्या एरर है। कोई एरर नहीं है। हाँ, इस सेल की प्रेजेंटेशन जो है आपके बुक में भी दी हुई है, आप जस्ट फाइंड आउट कीजिए कि व्हाट इज रॉन्ग इन दिस। मैंने क्या किया है, कॉपर इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट किया है। जस्ट फाइंड आउट वेदर दिस सेल प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन इज करेक्ट और नॉट। बुक पढ़ना भी नहीं आता आप लोगों को, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड वाले पार्ट में मिलेगा। बुक पढ़ना तो छोड़ो, आप क्या एरर है बोलो। है ना? मतलब ना कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो और ना बुक पढ़ने के लिए रेडी हो। बताता हूं, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कॉपर के केस में कि कॉपर की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऐसी है जो वो कभी भी हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट नहीं करेगा। बोलने से सब चलेगा, हाइड्रोजन आयन से वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। इट विल नेवर बी गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड बाय हाइड्रोजन आयन। That is why you can see here I have written copper ion getting reduced to copper and hydrogen gas oxidized to hydrogen ion, है ना?
तो यहाँ पे क्या होगा बोलो तो जरा, यहाँ पे ई सेल की वैल्यू आती है E cell value here is 0.34 वोल्ट। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे क्या, सॉरी ई नॉट सेल, तो ई नॉट सेल क्या होगा यहाँ पे, ई नॉट सेल विल बी इक्वल टू, पहले मैं लिखूंगा ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। अभी यहाँ पे तो हमें कॉपर तो कैथोड की तरह यूज हो रहा है ना यहाँ पे, तो वही फाइंड करना है ना। तो ई नॉट सेल 0.34 वोल्ट डाल दिया, ई नॉट ऑफ कैथोड इसकी जगह पे सिंबॉलिकली ये लिख दिया ई नॉट ऑफ कॉपर, और यहां लिख दिया माइनस 0.0। तो आपको मिला ई नॉट ऑफ कॉपर इक्वल 0.34 वोल्ट। गेटिंग द यूज ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। एक बार रिपीट कीजिए, व्हाट इज द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? A platinum electrode coated with platinum black, dipped in an aqueous acid solution where concentration of hydrogen ion is 1 molar and the hydrogen gas is bubbled through this at a pressure of 1 bar. This is the equation and this is actually reversible both way. ठीक है, जैसे हाइड्रोजन गैस कैन गेट कन्वर्टेड टू दिस ऑल्सो। एंड रेस्ट इज, जहां भी आपको ई नॉट और रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की डिटरमाइन करनी है, आप उसको स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कीजिए। इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो, आप Zn2 प्लस लिख के फिर ये आगे का पार्ट लिख सकते हो। ठीक है, सो we have covered the introduction of the chapter. The fact is, whatever I have taught you today, this is already the part of grade 11 redox reaction. ये redox reaction grade 11 में पढ़ा हुआ पार्ट है ना, लेकिन चलो फिर भी एक रिकॉल करने के लिए आपके पास एनफ डेटा हो गया, यू हैव रिकॉल्ड इट। इसको एक बार फिर से पढ़िएगा, एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड जरूर पढ़िएगा, क्योंकि छोटे से छोटे पैसेजेस से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन फ्रेम करके आते हैं। ये मत सोचिएगा कि ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, इससे क्या क्वेश्चन आएगा। डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा, मैंने एग्जांपल बता दी ना कि 4 मार्क का क्वेश्चन तो इसी टॉपिक से आता है। एक्सटर्नल सेल, एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करने पे 3 कंडीशंस जो बताए, 4 मार्क का क्वेश्चन उसी से फ्रेम हो जाता है ना। तो एक एक वर्ड अच्छे से पढ़िएगा, और जो छोटे बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थ्योरेटिकल रह गए हैं यहाँ पे लिखने, उसको आप शॉर्ट आउट करके खुद नोट कर लोगे। क्लियर? अब टुमारो वी विल स्टार्ट विथ नॉन्स्ट इक्वेशन। कल हम नॉन्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। अब नॉन्स्ट इक्वेशन भी आपको बता देता हूं कि क्या है। देखिए यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज किया है ना, और हमें जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिला वो क्या मिला? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, है ना। लेकिन जरूरी तो है नहीं ना कि हमेशा आपको 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट मिले। ये भी जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर हमेशा 298 केल्विन ही रहे, है ना। दैट मीन्स अदर देन स्टैंडर्ड कंडीशन यू कैन हैव अदर कंडीशंस एज वेल। और जब बाकी दूसरे कंडीशंस होंगे तो उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे फाइंड किया जाएगा, इसी का एक्सप्लेनेशन और इसी के लिए सॉल्यूशन नर्स्ट ने निकाला था, in the form of an equation, in the form of a formula which is known as Nernst equation. तो कल हम वो नर्स्ट इक्वेशन पढ़ेंगे। नर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हुए हम सेल के लिए भी नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे। पहले हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, फिर हम सेल पोटेंशियल के लिए नर्स्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। इतना कर लेंगे तो 1/3 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चलिए फाइन, दैट्स ऑल फॉर टुडे।